Good morning students. Today we will start with exercise 14.2. This exercise is based on mod of grouped data. 9th क्लास में हमने mod of ungrouped data पढ़ा था. 10th क्लास में हम mod of grouped data study करेंगे. Now let us start with question number 1. The question says the following table shows the ages of patient admitted in a hospital during a year. Find the mod and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. तो बेटा let us understand the question first कि हमें ये बोला हुआ है कि ये एज है और ये नंबर ऑफ पेशेंट है. ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्लास इंटरवल हो गई. So there are 6 patients whose ages are between 5 to 15 years. There are 11 patients whose ages are between 15 to 25 years and so on. तो हमें दो चीजें बतानी है. पहला तो हमें ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट की एज कितनी है, तो वो बताएगा हमें मॉड. या ज्यादातर पेशेंट कितनी एज के हैं वो हमें पता चलेगा मॉड से. दूसरा हमें बताना है अंदाजन हर पेशेंट की एज कितनी है. दैट ऑन एन एवरेज हर पेशेंट की एज कितनी है, दैट मीन विल टेल अस. तो ये दोनों चीजें हमें इसमें बतानी है. नाउ लेट अस फर्स्ट डू मॉड. फॉर डूइंग मॉड वी विल यूज द फॉर्मूला. Mod is equal to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Now here we should know what these alphabets denote. Now L denotes lower limit of model class. Then F1 frequency of model class. Then F0 or F0 is frequency of class preceding the model class. And F2 is frequency of class succeeding the model class. And H is class size. Now beta, here I am using the word frequency of model class, lower limit of model class. Now what is this model class? Model class हम कैसे फाइंड करेंगे? We will look at the frequency. फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. Here in this case 23. We will mark this as F1. तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास है. ये हमारे पास मॉडल क्लास हो गई. दिस इज मॉडल क्लास. और जो ये इसकी लोअर लिमिट है ये वाली 35. सो 35 इज L. दैट इज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. देन F0, दिस वन F0 और F0 ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी. देन नेक्स्ट इज 14 विच इज F2. ये है F2. दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. मॉडल क्लास के बाद वाली
क्लास की फ्रीक्वेंसी एंड h द क्लास साइज। यहाँ पर हर जगह क्लास साइज क्या है हमारे पास 10, तो इसलिए क्लास साइज इज 10। अब बेटा यहाँ पर देखिए L वर्ड आ रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसमें हर एक में अगर क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है तो आप पहले कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बनाएंगे। नाउ लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड फाइंड मोड। नाउ मोड इज इक्वल टू L प्लस, तो L क्या लिखेंगे 35 प्लस F1 मीन्स 23 माइनस F0 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस F2 14 into 10 which is class size. Now this is equal to 35 plus 2 by ये आपके पास क्या हुआ 46 माइनस 21 माइनस 14, तो क्या हो गया ये माइनस 35 और 46 माइनस 35 क्या होगा 11। सो मैं यहाँ पे 11 लिख रही हूँ into 10. So now this is equal to 35 plus 20 by 11, which after cancellation gives me 11 ones are 11, 9 carry, 11 8s are 88, 2 11 ones are 11. So now this is equal to 35 plus 1 36.81. So here beta, by this we mean that most of the patients are of age 36.81 years. Now in this question we have to find mean also and compare the two datas. Now let us find mean. So beta, now for finding mean we need column xi and fi here. तो मिडिल वैल्यू 5 प्लस 15 20 बाई 2 10. सो यहाँ पर नेक्स्ट इज 20, हियर 30, यहाँ पर 40, देन 50 एंड देन 60. दीज आर द क्लास इंटरवल्स. अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है fi xi. आप di से भी कर सकते हैं. सो लेट अस डू बाय fi xi. नाउ दिस इज इक्वल टू 60, then 220, then 21 3 हो गया आपके पास 630 and then 23 4 4 3 12 920, then 700, then 300. So now summation fi xi, this gives us 0, 6 plus 2 8 plus 3 11 plus 2 13, 3 1 carry, 3 plus 6 9 plus 9 18 plus 7 25 plus 3 28. और आपके पास यहाँ पर समेशन fi हो गया 6 plus 1 7 8 8 plus 3 11 11 plus 4 15 15 plus 5 20 2 carry, तो 6 7 70 80 3 6 7 that is 80. So this is summation fi. Now mean, the formula is x bar is equal to summation fi xi by summation fi. Now this gives us 2380 by, बेटा this is 2830, गलत लिख दिया, 2830 by 80. ये कैंसिल हो गया. Now after this changing into decimal, 8 1s are 8 3s are 24, 43, 8 5s are 40.30 हो गया. तो आपके पास 8 3s are 24, 6 carry 60, 8 7s are 56, 8 5s are 40. तो 35.375. Now beta, let us compare the two values. We got mean as 35.375 और मीडियन हमारे पास क्या आया था
मीडियन, सॉरी बेटा मॉड, मीडियन तो नेक्स्ट वर्कशीट में है मॉड, एंड मॉड वी गॉट वाज 36.81। तो मॉड इंटरप्रेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट आर ऑफ एज 36.81, और हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज एवरी पेशेंट इज ऑफ 35.375 ईयर्स। ये अंदाजन हमें हर पेशेंट की एज बता रहा है, और ये हमें बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट कौन सी एज के हैं। Students, now let us come to question number 2. It says the following data gives the information on observed lifetimes in hours of 225 electrical components. Deter the model lifetime of the components. देखिए बेटा यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि there are 10 electric components whose lifetime is 0 to 20 hours. There are 35 electrical components whose lifetime is 20 to 40 hours. तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं उसकी जो लाइफ टाइम है वो कितने आवर्स है। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड मॉड। मॉड पूछा उन्होंने यहाँ पे, सो लेट अस राइट द फॉर्मूला। मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बेटा कई बच्चे ना ये लाइन यहाँ तक ले आते हैं, L के नीचे नहीं है, ये डिनोमिनेटर ओनली दिस साइड है, तो आप इसे ब्रैकेट में लेके सॉल्व करो, और ये अलग है L से, ये ध्यान रखना, मिस्टेक यहाँ पर होती है बच्चों की। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट मार्क द वैल्यूज इन द टेबल। मीडिया, सबसे पहले हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज दिस वन, सो दिस इज द मॉडल क्लास, और ये हमारे पास क्या हो गई, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। दिस वन इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये F1 हो गई फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। देन दिस इज F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड दिस वन F2 frequency of class succeeding the model class, and class size in each case is 20. Now let us put all the values. L की वैल्यू हो गई 60 प्लस F1 61 माइनस 52 बाय 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 into 20. So this is equal to 60 plus 61 में से 52 गए आपके पास 9 हो गए अपॉन 2 into 61 हो गया 122 माइनस 52 माइनस 38 माइनस 90 into 20. Now this after solving it is equal to 60 plus 9 upon 122 minus 90 हो गया आपके पास 32 into 20. तो इसको हम 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 5 जा 4 8 जा, so 60 plus 45 upon 8, so 8 5 जा 40, 50 हो गया, 8 6 जा 48, 20 हो गया, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, so 65.625 आवर्स। तो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम जो है वो 65.625 आवर्स है। दिस इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। बेटा remaining questions of this worksheet you will do yourself, because in all the questions either we have to find mod or both mod and mean. तो कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, सभी क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो। So you will complete this exercise 14.2 by yourself.